Assalamu alaikum, Sana Gilani. Assalamu alaikum, how are you? I'm good, Alhamdulillah. You tell, how about you? I've been well. That's great. So, how's going your lockdown and everything? How's going your Corona thing? Lockdown is lockdown, so obviously bahar itna nahi nikal sakte. You have to be careful. But I finally got my first dose and feels great. Just That's waiting great. to get my second one so that I read it yesterday that all the people who are getting this vaccination, they are gonna die in 2 years. I don't know. I mean, of course, that's not true, but there are people who are. I don't know why they are doing this thing. So Anyway. there's always a lot of negative, news speculations Yeah. everywhere. हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, so I don't really listen to news anymore. Yeah. True. Okay. So, how about the work? I mean, how is it going during this pandemic? Work's good because work is usually like work from home आजकल basically तो it's not a big deal. You work from home लेकिन थोड़ा बहुत problem इस sense में होता है कि like everybody around you does not understand the ethics of working from home. And so they think आप फ्री हैं तो आपसे बातें भी कर रहे होते हैं लोग आते जाते Yeah. और कोई कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, कोई कह रहा है मुझे वो चाहिए. So और it's a कोई little कह रहा है hard. कि और कोई कह रहा है कि जस्ट 1 मिनट के लिए ये कर दो जरा आके बस 2 मिनट हाँ आना मतलब जरा कि या बिल्कुल they don't इट्स जस्ट अ understand the टाइनी थिंग आई मीन workflow. या इट्स जस्ट अ या टाइनी थिंग वर्क फ्लो नहीं अंडरस्टैंड करते लोग. हाँ सही कह रहे हैं आप. ट्रू अच्छा मुझे एक बात बताइए हम लोग तो चलें ठीक है वी आर यूटिलाइजिंग दिस लैपटॉप थिंग एंड ऑल but what about those people who cannot work from home who do not understand the meaning of this work from home how about those जिनका काम एक real time disturb हुआ है we can take it toward the messing sides labor or even the people who are more into the physical work what do you think how would they manage and how are they managing nowadays So they're not managing as effectively obviously. और ये जो मजदूर वगैरह जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आते हैं हमारे घरों में भी काम कर रहे हैं. हमारे जो सर्वेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं. तो मेरे ख्याल से उनका काम एक हद तक काफी डिस्टर्ब हुआ है. बट कीपिंग दैट इन माइंड एक और चीज ये भी है कि उनको इतना न्यूज का भी नहीं पता और वो इतना लिटरेट नहीं है कि वो उनको समझ आ सके कि क्या है क्या नहीं है. तो उस सेंस में आई थिंक अवेयरनेस थोड़ी कम है तो वो मास्क भी नहीं पहनते और बाहर फिरते हैं. ट्रू अच्छा लेकिन एक दूसरी एक पूरी कौम है हमारे पास जिसको अवेयरनेस भरपूर है और जो अपना टाइम पूरा ज़ाया करने के माहिर हैं जो स्टूडेंट्स हैं व्हाट डू यू थिंक वो इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड आई एम नॉट सेइंग हाउ कैन दे स्पेंड इट इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट लिविंग हाउ कैन दे मेक दिस टाइम मोर प्रोडक्टिव और क्या एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं क्या कोई काम है जो स्टूडेंट्स कर लें घर बैठ के जो वर्क फ्रॉम होम के अंदर कंसिडर किया जाए ड्यूरिंग द स्टडीज इवन विद द स्टडीज माइट बी व्हाट डू यू सजेस्ट Well, whatever I suggest is just my personal opinion, Sure. and it doesn't have to be taken into account by anybody if they don't want to. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास वैसे इतना कम टाइम है दुनिया में. Not being a bummer or a party pooper, but I'm just saying कि like you need to utilize your time properly so that you feel like आपने कुछ waste नहीं किया. You haven't just woken up, ate and slept again. Like वो तो एक routine है ना जो हम सब करते हैं. That is basically species behavior, not even human. Like animals also do it, right? True. But what are you doing that's so different? और आपको जो चीज अच्छी लगती है आपके पास इस वक्त time है to focus on that. If you like, home management skills, you can learn that. If you wanna, learn a new software, you can do that. तो इस तरह से बहुत सी different चीजें हैं जो आप learn कर सकते हैं. ट्रू अच्छा हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक बड़ा स्पेसिफिक और माइट बी इन द होल एशिया वी हैव दिस कॉन्सेप्ट कि जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ यू कैन नॉट वर्क आई मीन पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लो उसके बाद सारी ज़िंदगी काम ही करना है सो लेकिन अगर हम देखें तो डेवलप्ड नेशंस जितनी हैं वहाँ पे वो उनको एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ बिल्ड कर रहे होते हैं कि आप इवन यू हैव कंप्लीटेड योर लेट्स सपोज ओ लेवल्स ए लेवल्स एंड नाउ यू आर इन ग्रेजुएशन सो इट्स बेटर टू डू सम पार्ट टाइम जॉब एज वेल पाकिस्तानी भी जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जाके ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं लेकिन साथ जस्ट टू मैनेज देयर ओन एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ कोर्स इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि वो यूके में रह रहे हैं लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं न्यूजीलैंड रह रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सारा उनके एक्सपेंसेस पाकिस्तान से बेयर कर रहे हो
पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि वहां पे जब तक स्टडीज कंप्लीट नहीं होती वी आर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली। बाहर एक कॉन्सेप्ट है कि वहां पे इवन दे आर स्टडिंग तो उनके लिए गवर्नमेंट ने भी 4 आवर पर डे टाइम स्लॉट एक डिफाइन किया हुआ है, इट कुड बी 7 आवर्स वीक डिफाइन किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक ये कौन सा बेहतर है और किसको ज्यादा अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट किया जाना चाहिए? यार सिंस वी आर जस्ट गोइंग फॉर ओपिनियंस, तो मेरा ये ओपिनियन है कि यहाँ पे होना चाहिए एक जॉब सिस्टम, जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैं मिडिल स्कूल में थी। लाइक मिडिल स्कूल इन द सेंस के अपना जब ए लेवल्स करके आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, तो आई यूज्ड टू फील लाइक आई नीड सम एक्स्ट्रा मनी फॉर माई सेल्फ। Like I was not entirely dependent on my parents because मैं शुरू से बहुत independent रही हूँ उस सेंस में। Like मुझे नहीं अच्छा लगता लोगों से पैसे लेना और कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। But it kind of does not make me feel good about myself. That's just a personal thing, right? Sure. तो मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब्स उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत और जॉब्स भी की मैंने। लाइक ट्रैवल एजेंसीज के अंदर राइटिंग की, ट्रैवल एजेंसीज के अंदर ब्लॉग्स लिखे, ट्रैवल लॉग्स लिखे, और फिर मैंने मैगजीन कंपनीज में काम किया जिसमें मैंने मैगजीन आर्टिकल्स लिखे, लोगों को मार्केटिंग के लिए कॉल्स की, उनके क्लाइंट्स बनाने की कोशिश की उस कंपनी के। तो इस तरह की और जॉब्स पार्ट टाइम करती थी, लाइक शाम में कर ली और उसके बाद सुबह में अपनी यूनिवर्सिटी अटेंड कर ली। तो इट डिड गेट अ लिटिल हेक्टिक बिकॉज यहाँ पे पार्ट टाइम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। दे ओनली वांट टू एम्प्लॉय यू इफ यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय, दे लाइक 9 to 5। अदरवाइज नो, वी डोंट वर्क विद समबडी लाइक दैट। तो आई थिंक ये एक कॉर्पोरेट अगर हो जाए पाकिस्तान में तो ये बहुत अच्छा है फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क। एंड ऑल्सो जब हम ये स्टीरियोटाइप के मैकडॉनल्ड्स और केएफसी में काम नहीं करना वरना बेइज्जती हो जाएगी टाइप, ये स्टीरियोटाइप्स अगर हम अपने अंदर से खत्म करेंगे ना और अपनी ईगो खत्म करेंगे इन चीजों में डालनी, रादर देन फोकसिंग ऑन द रियल थिंग्स कि आपके पास जॉब है, आप पार्ट टाइम पैसे कमा रहे हैं। अगर आप मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं या केएफसी में काम करते हैं, डजंट मैटर, यू अर्निंग मनी, तो यू आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ट्रू। और ये तो कभी नहीं कहा कि ज्यादा कमाना जो है वो इबादत है, रिस्क हिलाल इबादत है। आप रिस्क हिलाल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा जितना भी है अपनी एज के अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, या वी शुड डेवलप दिस कल्चर ओवर हियर। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है व्हेन दे कंप्लीट देयर डिग्रीज और वो सब चीजें कंप्लीट होती हैं, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब। कोई करियर काउंसलिंग उनके पास मौजूद नहीं है। अभी आज भी मैं एक इंटरव्यू के अंदर था और वहाँ पे बात हो रही थी कि जब आप एक अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, होना तो ये चाहिए कि आपको अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं उसके बाद, क्योंकि अब ये पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है, कैसे अपनी सीवी इवन लिखनी है, इंटरव्यू में कैसे जाके बात करनी है, इस चीज़ के ऊपर पूरी एक ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो जॉब उनको मिलती है वो वही कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी लाइफ वहां पे वेस्ट कर लेते हैं इस रिस्क के ऊपर कि इस जॉब को स्विच करके दूसरी कहीं जाएगा तो एक लगा हुआ रिस्क जो है उससे हटते हैं। अच्छा, अब इस सब का एक सोल्यूशन है जो हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनके साथ कर सकते हैं, दैट इज द करियर काउंसलिंग। व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान में कितनी की जा रही है और उसको कितना किया जाना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? सो आई थिंक हम एजुकेशन काउंसलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में नो ऑफेंस लेकिन पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन फोकसिंग के लोगों को कुछ बनने के लिए हम मेंटोरशिप दें या जैसे करियर काउंसलिंग वो स्कूल्स में होती है जिसमें आपको बताते हैं आप ये सब्जेक्ट्स रखें ये सब्जेक्ट्स रखें, लेकिन करियर काउंसलिंग बहुत कम है अभी भी उस तरह से पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं की जाती जितना कि मुझे लगता है कि करनी चाहिए। And I have worked for education agencies as well. I don't want to name them, लेकिन most of them were focusing on those people जिनके अम्मी अबू बहुत अमीर कंपनीज के ओनर्स थे, क्योंकि उनको पता था कि हम इनसे मैक्सिमम पैसे निकलवा सकते हैं। और जो अच्छे बच्चे भी थे जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आगे निकल सकते थे और मतलब इफ दे डिडंट हैव इनफ फाइनेंसेस तो उनको उतनी उन यूनिवर्सिटीज में टारगेट करने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत सेपरेट डिबेट है, लेकिन ये भी मैंने देखा है बहुत होते हुए, तो मैं इसके भी बहुत खिलाफ हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत अनफेयर है स्टूडेंट्स के लिए जो कि वाकई में कुछ बन सकते हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए रादर देन दोस्त जो हमें पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मनी मेकिंग बिजनेस तो फिर हर कोई कर रहा है ना यहाँ पे। True. So I think career counseling also is not readily available for students, which is why हम गलत jobs जाके मैंने अपनी लाइफ में जॉब्स कर करके रियलाइज किया कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है।
और इसीलिए और जॉब्स किए हैं, बिकॉज मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जॉब करनी है, वो जॉब करनी है, कौन सी सूट करती है, यू नो, आफ्टर यू get a taste of every experience of every field, that's when you realize कि अच्छा यार मुझे ये करनी। बट अगर आपके पास करियर काउंसलिंग हो तो आप अपने 9 to 10 years इस चीज में वेस्ट नहीं करेंगे ढूंढने में the right path for you. You will know कि you know this is who I am, this is what suits me, this is where I need to be, that's it. अच्छा, अब करियर काउंसलिंग मौजूद नहीं है तो स्टूडेंट्स को या जो लाइक पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्रीज व्हाट दे शुड डू, वो किस तरह से फिर यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या उसका यही एक सोल्यूशन है, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट कंपनी, स्टार्ट डूइंग अदर जॉब्स और उसके बाद ही जो आपको बेहतर लगे एंड देन यू विल फाइंड इट आउट योर इंट्यूशन के यार ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मुझे सूट करता है, मेरा इंटरेस्ट है? क्या कोई और भी इसका सोल्यूशन हो सकता है? क्या एक पैटर्न हो सकता है जिसके थ्रू अगर करियर काउंसलिंग आपको स्कूल्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई तो उसको खुद कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? या ये हो सकता है कि करियर काउंसलिंग के लेक्चर्स यूट्यूब पे सुन लें? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, यूट्यूब लिंक्स ऑब्वियसली हेल्प, आपके रिसोर्सेज वगैरह जो जितने भी आप कर सकते हैं, आप लोगों से पता कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं. You can just gather all the second hand research, you know, and maybe obviously people also help you out to be, you know, this is your field, आपने ये पढ़ा है तो ये सूट करता है आपको ज्यादा. लेकिन having said that, अगर even आपने कुछ पढ़ा है और आपको उसी फील्ड में जॉब की है आपने और आपको सही नहीं लग रही, दैट मीन्स कि दैट जॉब इज नॉट फॉर यू particularly. I've also seen people shift from advertising agencies into acting. Like they just thought कि नहीं, हमने पूरी जिंदगी पढ़ा है बिजनेस वगैरह ये वो, जब सब कुछ पढ़ के और आप उसके बाद लैंड करते हैं किसी मार्केटिंग जॉब में. Through experience, yes, I think through experience you learn. That is one of the main ingredients. And through you know, asking people around you in your company, in your community, your friends, your parents, your mentors, all of those people do help also. तो ये दो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस और वो, और करियर काउंसलिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती है अच्छी तो जरूर, you know, get a mentor, maybe even abroad if you can afford one. अब तो सब कुछ ऑनलाइन है वैसे भी, so I think it's much easier now to have a career counselor. ट्रू. अच्छा, मुझे ये बताइए सना कि आपका खुद का भी टीचिंग एक्सपीरियंस रहा? आई मीन आई हर्ड दैट यू वर इनटू द टीचिंग थिंग एज वेल. वर यू? Yeah, I was a teacher. Okay, so what do you think, what is the real purpose of education? I mean, people related that we have to get the degree so that we get good jobs. Is it only to get the job or what is the real purpose of that? Yeah, मेरा opinion to get education is just to open up your mind and see where it goes. Like that's just my motto. I don't believe in anything else. के 2+2 सिखाती है मैं education और ये सारी चीजें तो बहुत common है, right? But what exactly is it doing for your mind, for the subconscious, which is the real place where you live most of your life? So I think if it just opens up your mind to possibilities that you probably did not know existed inside of you. Okay. और मेरे ख्याल से कि मैंने इसी तरह ही डिस्कवर किया कि मुझे रीडिंग का शौक है, मुझे राइटिंग का शौक है. एजुकेशन के थ्रू ही आपको पता चलता है ना, आपको टीचर फोर्स करती है कि भाई आर्टिकल लिखो. अब कुछ लोग कहते हैं यार आर्टिकल नहीं लिखना प्लीज, मैं ये वो फलां, कुछ लोग लिख रहे होते हैं बैठ के. सो दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि दे रियली लाइक इट, यू नो. And that's when the teacher also knows कि this person, this बच्चा is good at this. So in a way teachers भी आपकी बड़ी अच्छी career counseling कर सकते हैं. अगर तो आप इस चीज को प्रमोट करें schools में, universities में कि you know they should be telling parents in parent teacher meetings कि भी आपका बच्चा इस चीज में अच्छा है. क्योंकि यहाँ भी इस तरह का फोकस नहीं है कि अगर कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है तो उसके माँ बाप उसको पेंटिंग के लिए प्रमोट नहीं करेंगे या उसको बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे कि भाई you know this is a career option for you. So I think ये चीजें बहुत important है अभी भी incorporate करनी हमारी education industry में. But overall मेरे ख्याल से कि it just opens up your mind. So that's why education is really really important for closed minds जो कि होते हैं जब आप आपके पास एजुकेशन नहीं होती है तो आपको फिर जो आप बस देख रहे हो अपने इर्द गिर्द आपकी हुई एजुकेशन है. और मेरे ख्याल से वो थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है इस सेंस में क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे बिलीव्स जो कि बहुत सालों से फॉलो किए जा रहे हैं और वो सही नहीं है और वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं ना बच्चों में. बिल्कुल.
True. So they need to come up with their Okay, so just as you were saying कि let's suppose कि आपको टीचर ने असाइन किया कि आपने आर्टिकल्स लिखने हैं और वहाँ पे कुछ बच्चे थे जिनको पसंद आया आर्टिकल्स लिखना एंड दे स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स दे फिगर आउट कि यार अच्छा ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एंड हाउ अबाउट दोज जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं होता फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान टू बी स्पेसिफिक जो इंजीनियरिंग में इसलिए एडमिशन लेते हैं कि हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें ये कह रहे हैं वो हमें पूरा पुश कर रहे हैं लेकिन हमें वहाँ से एक किक नहीं मिल रही है और हम चाहते हैं कि हम अपने आप को कहीं शिफ्ट करें किसी दूसरी फील्ड में जाएं फॉर इंस्टेंस आई मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल I was studying in a specific university that is one of the top notch universities in Pakistan but I didn't like that at all. People were like यार इसको कौन रिजेक्ट करता है मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा था वो कोई और it was a fight between me and my family for approximately 3 years and eventually I lost that just because कि वहां पे पूरा फोर्स था कि नहीं this is what you have to do. So how about those who figure it out कि यार नहीं ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है so how they can deal with the situation with the family with the teachers of course and all. So I think कि ये जो रेबेलियन है ये अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है पहले इतना इनकॉर्पोरेटेड नहीं था हमारे अंदर पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वही किया जो उनके पेरेंट्स ने उनको बोला एंड आई हैड दिस वेरी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन विद माय डैड आल्सो अ कपल ऑफ मंथ्स बैक वेयर ही सेड कि हाँ तो डॉक्टर अगर बन जाते बच्चे तो क्या अच्छा होता और ये वो बिकॉज ही इज अ डॉक्टर आल्सो he always wanted us to be doctors. So I told him कि in the way that he keeps pushing it on us कि हम डॉक्टर बने तो उससे बैकफायर ये होता है कि मैं कुछ भी बनना चाहूंगी ना जिंदगी में तो मेरा दिल नहीं करेगा बिकॉज मुझे पता होगा कि मुझे वो वैलिडेशन ही नहीं मिलनी कभी मैं कुछ भी बन जाऊंगी मुझे पता है उनको इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए तो किसी भी चीज की कोई वैलिडेशन नहीं है देयरफॉर मेरा कुछ भी बनना मीनिंगलेस है दुनिया में. तो मेरे ख्याल से कि अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा निगेट कर देते हैं इस चीज पे या पुश करते हैं किसी चीज पे नहीं ये करो तो उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाता है कि इसके अलावा मैं कुछ भी करूंगी तो दे वोंट एक्सेप्ट मी और एक्सेप्टेंस एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अ टीचर आई कैन टेल यू दिस किड्स जिनको एक्सेप्ट किया जाता है क्लास में अगर उनको नहीं भी इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में लेकिन आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है उसको इंटरेस्ट नहीं है आई एक्सेप्ट इट तो वो फिर भी दे विल ट्राई टू मेक एन एफर्ट टू स्टिल राइट द आर्टिकल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जो बोरिंग लग रहा है ना उस बच्चे को. लेकिन अगर मैं उसको बता रही हूँ कि हाउ अबाउट इफ यू राइट अबाउट दिस थिंग and he is motivated about that thing he will definitely write about it even if he doesn't like to write because usko wo cheez se strong affiliation hai. तो likewise आपको किसी भी चीज में अपना आप ढूंढना बहुत important है वरना आप सिर्फ ऊपर से ना सरफेस लेवल किसी के लिए किसी की खुशी के लिए काम करें एंड देयर विल बी अ पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू आर जस्ट टायर्ड एंड यू आर लाइक अच्छा मैंने तो सबके लिए कुछ ना कुछ कर लिया अपने लिए तो कुछ नहीं किया तो फिर आप रिग्रेट करते हो अपने पेरेंट्स को भी डिस्पाइट करते हो और वो ऐसा मोमेंट नहीं आना चाहिए लाइफ में मेरे ख्याल से. मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें देयर इज डिसलाइकिंग टुवर्ड्स क्योंकि उनको फोर्स किया गया ना टू बिकम एन इंजीनियर और व्हाटएवर जितने भी पैसे कमा रहे हैं वो लेकिन अब वो इट्स लाइक अ जस्ट अ थिंग फॉर देम इट्स नॉट समथिंग दे डू विद पैशन तो पैशन मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. मैं बहुत बिलीव करती हूँ उसमें. अच्छा एक चीज जो आपने इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक जो आपने एक्सेप्टेंस की बात की है. एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर या तो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं होती जहाँ पे होनी चाहिए और या होती है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर हमारे जो सारे सोसाइटल नॉर्म्स बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जॉब करनी है तो मैं क्यों नहीं करूंगा आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब क्यों नहीं करूंगा. फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग वी वर टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड जॉब why won't I do that because society won't accept me. एक्सेप्टेंस आई मीन लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं जिसके अंदर उनको ये पता चल रहा होता है कि यार ये करूंगा तो शायद मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी. इस माइंडसेट से बाहर आना जब हम आते हैं जैसे जिन लोगों को लोगों की परवाह नहीं रहती हम देखते हैं कि वो ज्यादा जल्दी अपना ग्रो करने लग जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द पीपल दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ओन लाइफ ट्रैक और माइट बी द पाथवे दे वांट टू अडॉप्ट थ्रू टू बिकम मोर सक्सेसफुल. सो व्हाट डू यू थिंक कि इसके अंदर लोगों की ओपिनियन कोई एक्सेप्टेंस रखना या उनको बिल्कुल साइड पे करना उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
सो आई थिंक एक्सेप्टेंस के ऊपर वर्क करना इज मिनिमम इम्पोर्टेंस टू मी कि कोई मुझे एक्सेप्ट करता है या नहीं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी आई थिंक फोकस इसी पे किया था पहले, और उससे कोई खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आपको हर कोई हर वक्त एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई ना कोई चीज आप में जरूर बुरी होगी जो किसी को बुरी लगेगी, राइट? ट्रू। तो बेकार है इन अदर वर्ड्स उसके लिए काम करना। और अगर आप एक्सेप्टेंस के लिए काम करते रहेंगे तो आप अपने लिए कोई काम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपके अब्बू को कुछ और चाहिए आपसे, आपकी अम्मा को कुछ और चाहिए, आपके भाई को कुछ और चाहिए, आपकी बहन को कुछ और चाहिए, आपके हस्बैंड को कुछ और चाहिए, आपकी बीवी को कुछ और चाहिए, आपके रिश्तेदारों को कुछ और चाहिए, आपके नेबर्स को कुछ और चाहिए। तो आप अगर दूसरों के बारे में, वो जो है ना एक फेमस लाइन के लोग क्या कहेंगे वाली बात, तो वो पाकिस्तान और इंडिया और जो बाकी एडजॉइनिंग एरियाज है, इवन लाइक एशियन कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा इसको सर पे सवार करते हैं हम लोग ना, बट मेरे नहीं ख्याल से कि ये करना चाहिए। आई थिंक इट्स समथिंग विच इट्स हाई टाइम कि हमें अब इसको बिल्कुल पीछे छोड़ के और वही करना चाहिए जो हमारा दिल करता है। और बच्चों को भी, जो आगे की जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि दे नीड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एंड नॉट सी कि भाई फिर, क्योंकि अभी भी प्रेशर है बहुत से बच्चों पे, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो मेरे पास आते हैं वापस, एंड दे से कि हमें घर से प्रेशर है, हम ये नहीं बन सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम क्या करें। तो आई जस्ट टेल देम कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ देम विल become what they want to, not all of them, even when I say कि भाई खुद ही करना चाहिए जो आपका दिल करता है, मुझे पता है कि most of them will not be able to do it, but it's still a struggle। और उसमें ही शायद वो अपने लिए कुछ बेहतरी कर सके, अगर कुछ ढूंढ सके अपने अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई ऐसा इंसान मिल जाए आपको जो आपकी थोड़ी सी सपोर्ट कर लेना, तो आपके लिए वो भी काफी होता है। और बस अब यही कहना चाहती हूँ कि मुश्किल तो है ये, लेकिन you know, once we continue the struggle it becomes a movement, and once the movement takes momentum तो तब उसकी पावर ज्यादा होती जाती है साथ साथ। तो it will take time, अभी एकदम से तो नहीं कुछ भी हो सकता, लेकिन हो रहा है अब थोड़ा बहुत, you know, awareness हो गई।